اگر کوئی بہت ہی کم سمے میں خوب ساری دولت حاصل کرنا چاہے، وہ نادی علی شریف کے موکلات سے دوستی کرنا چاہے، نادی علی شریف کی روحانیت کو حاصل کرنا چاہے، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے، تو اس کے لیے نادی علی شریف کا یہ خاص عمل، یہ روحانیت بھرا عمل بڑے کام کا ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جسے پڑھنے سے رب تبارک و تعالیٰ دولت کے دروازے کھول دیتا ہے اور بندہ بہت ہی کم سمے میں دولت مند، امیر ہو جاتا ہے، مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو بنے رہیے میرے ساتھ، ویڈیو کے آخر تک بات کرتے ہیں اس بے مثال روحانیت بھرے عمل کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ۔ السلام علیکم، آداب، میرا نام ہے کریم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں طلسمی دنیا۔ طلسمی دنیا چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں۔ ساتھیوں، یہ بات تو ہم آپ بہت ہی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دینے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے اور وہ سب کچھ دینے پر قادر بھی ہے۔ وہ بندے کو روڈ سے اٹھا کے ارب پتی بنا سکتا ہے، وہ پل بھر میں فرش سے عرش پہ پہنچا سکتا ہے، وہ راتوں رات کروڑپتی بنا سکتا ہے، وہ چھپر پھاڑ کے بھی دے سکتا ہے، وہ بہت ہی کم سمے میں انسان کو کروڑپتی امیر بنا سکتا ہے۔ لیکن کوئی اس سے مانگنے والا بھی ہو تو طریقے سے، سلیقے سے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو، وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جب بندہ اس سے کوئی سوال کرتا ہے۔ بھائی، رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے، وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب ایک ماں کی محبت کا اندازہ کوئی مائی کا لال نہیں لگا سکتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے بندے سے کتنی ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو جب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے سے اپنے رب سے کوئی مانگتا ہے، طریقے سے مانگتا ہے، سلیقے سے مانگتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے اور اس طرح سے بندہ بہت ہی کم وقت میں خوب ساری دولت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بندو، ایک نقطہ اور ہے جسے جاننا اور اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حرکت میں ہی برکت رکھا ہے۔ اگر انسان حرکت کرتا ہے، صحیح دشا میں محنت کرتا ہے، تب رب اس میں برکت ڈالتا ہے اور اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو صحیح دشا میں محنت کرنے کے ساتھ ساتھ، صحیح تدبیر سے، صحیح ٹیکنک سے کام کرنے کے ساتھ ساتھ، اگر بندہ اپنے رب کو بھی یاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور طریقے سے، سلیقے سے مانگتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اسے ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کا بھی وہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے۔ تو آئیے، یہ عمل کیا ہے، کیسے کیا جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد میں اس عمل سے سمبندھت ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری میں آپ کو بتاؤں گا جو سائنس سے جڑی ہوئی ہے۔ تو نادی علی شریف کے الفاظ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ نادی علی شریف کے الفاظ مختلف کتابوں میں، مختلف سلاسل میں الگ الگ ہیں، لیکن میں وہ الفاظ نادی علی شریف کا آپ کو بتا رہا ہوں جو صوفی اقبال احمد نوری صاحب نے اپنے خطاب میں لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادی علیم مظہر العجائب تزیدہ اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینزلی و نبوتی کا یا رسول و ولایتی کا یا علی یا علی یا علی۔ تو اس عمل میں نادی علی شریف کو پڑھا جائے گا، اور پڑھا کس طرح سے، کیسے، کہاں پہ پڑھا جائے گا، یہ پوری بات آپ اچھے سے سنیے اور سمجھ لیجئے۔ اس عمل میں آپ کو ایک جگہ کی، ایکانت والی جگہ کی پابندی کرنا پڑے گا۔ اب وہ آپ اپنے گھر میں کریں، کہیں بھی کریں، لیکن ایکانت والی جگہ ہونی چاہیے۔ ایکانت والی جگہ پہ آپ نے پڑھنا ہے، اور مصلی بھی آپ کا ایک ہی ہونا چاہیے۔ جب تک یہ عمل چل رہے تب تک آپ کا وہی مصلی ہونا چاہیے، اسی جگہ پہ پڑھنا چاہیے اور اسی وقت پہ پڑھنا چاہیے۔ 3 چیزوں کی پابندی ہے، مصلی وہی ہو روزانہ، اور جگہ بھی وہی ہو، وقت بھی وہی ہو روزانہ۔
पढ़ना इस तरह से है कि 500 बार नादे अली शरीफ पढ़ा जाएगा। नादे अली शरीफ के अल्फाज के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। 500 बार रोजाना नादे अली शरीफ पढ़ा जाएगा। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा। ये अमल हो गया, ये तरीका हो गया। और परहेज इसमें आप सुन लीजिए कि अगर गोश्त, मछली, अंडा, नॉन वेजिटेरियन से आप परहेज कर सकें तो कीजिए मुकम्मल तौर पे। जमाली परहेज अगर आप दूध दही से नहीं कर पाते हैं, लहसुन प्याज से, तो चलेगा। और अगर परहेज जमाली और जलाली के साथ करते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा होगा, बहुत ही जल्द आप कामयाबी इसमें हासिल करेंगे। और अगर परहेज नहीं कर सकते हैं तो जगह का, मुसल्ले का और वक्त का पाबंदी ज़रूर से ज़रूर करें और शरीयत मुतहरा की सख्ती से पाबंदी के साथ इस अमल को आपने करना है। इस तरह से कि 40 दिनों तक 500 बार रोजाना उसी जगह पे, उसी मुसल्ले पे, उसी वक्त पे आपने पढ़ना है। पढ़ने से पहले आपका नियत होना चाहिए क्या, आपका जो टारगेट है दौलत हासिल करने का, कर्ज अदा करने का और पैसों की तंगी को दूर करने का, गरीबी को दूर करने का, जो भी आपका टारगेट है उसकी मजबूती के साथ नियत करें और अपने रब तबारक व तआला की बारगाह में अपने आप को सरेंडर कर दें। अब पूरे परहेज के साथ, पाबंदी के साथ, पूरे दिल की गहराई के साथ, यकीन कामिल के साथ 500 बार रोजाना बताए हुए तरीके से नादे अली शरीफ को पढ़ें 40 दिनों तक। 40 दिनों में हैरत अंगेज तौर पे आप क्या देखेंगे कि मौला अली की रूहानियत, नादे अली शरीफ की रूहानियत आपको हासिल होती हुई नजर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला दौलत के दरवाजे, खजाने आपके लिए खोल देगा, आपकी रिज्क में कुशादगी अता फरमा देगा, आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा देगा। जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उस काम में आपको फतेह अता फरमा देगा, कामयाबी व कामरानी अता फरमा देगा। आपके चेहरे पे नूर आएगा और आपके चेहरे पे एक आकर्षण, ताकत, एक वश में करने वाली ताकत भी पनपती हुई नजर आएगी। ये नादे अली शरीफ के मौकिलात से दोस्ती भी इसमें आपको नजर आएगी और ये सब आप अपनी आंखों से देखेंगे, बशर्ते कि आप इसका जिक्र किसी से ना करें कि मैं ये अमल कर रहा हूं और अब ये होने वाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर करोड़ों का भी कर्जा है तो वो भी अदा हो जाएगा। आप रोड पे क्यों ना हो, आप अमीर हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। पैसों की तंगी, गरीबी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो कोसों दूर हो जाएगी आपसे इंशाअल्लाह अज़ीज, बशर्ते कि जिस तरीके से बताया जा रहा है उसी तरीके से किया जाए। अब ये अमल आपने 40 दिनों तक इसी तरह से जारी व सारी रखना है। 40 दिनों के बाद आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन जब तक आपको पूरी तरह से कामयाबी ना मिल जाए तब तक आप इस अमल को पढ़ते रहें। जगह अगर आप फिक्स कर लिए हैं, फिक्स कर सकते हैं तो 40 दिनों के बाद भी जगह को फिक्स किए रहें। और अगर नहीं कर सकते हैं तो 40 दिन तो जगह को फिक्स करें, वक्त को फिक्स करें, मुसल्ले को फिक्स करें। अगर 40 दिन के बाद नहीं कर सकते हैं तो मुसल्ले को और जगह को, मुसल्ले को और वक्त को फिक्स कर लीजिए और जगह मजबूरन अगर किसी दिन बदल जाए तो फिर कोई हर्ज नहीं होगा। हुसूल मकसद तक जब तक आप मुकम्मल तौर पे अपने टारगेट को अचीव ना कर लें, आपकी रिस्क की तंगी खत्म ना हो जाए, पैसों की तंगी खत्म ना हो जाए, आपका कर्ज अदा ना हो जाए, तमाम तरह की परेशानियां दूर ना हो जाएं, जो भी आपका टारगेट है पूरा ना हो जाए, तब तक आप इस अमल को जारी रखें। मुझे रब तबारक व तआला की जाते मुक़द्दसा पर यकीन कामिल है कि बहुत ही जल्द ऐसा इंतज़ाम फरमाएगा कि आपका काम बन जाएगा, आपका काम बनता हुआ, संवरता हुआ नजर आएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो करोड़ों का कर्जा हो, गरीबी हो, पैसों की तंगी हो, चाहे आपकी ज़रूरतें पूरी करने की बात हो। मुझे रब पे पूरा यकीन कामिल है कि नादे अली शरीफ पढ़ने से आपको ये सारी चीज़ें हासिल होंगी और ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ।
और ये रहा जो है नादी अली शरीफ के अमल के बारे में। हुसूल मकसद तक इस तरफ से पढ़ें। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ कि बंदे को रब तबारक व तआला उसकी हैसियत के मुताबिक ही अता फरमाता है। अगर कोई अब तक 1000 रुपया भी नहीं देखा और वो करोड़ों का सवाल करे रब तबारक व तआला से, तो ये उसकी हैसियत से बड़ा हो जाएगा। तो रब तबारक व तआला का वसूल है, उसका रब का कानून है कि वो अपने बंदे को उसकी हैसियत के मुताबिक ही अता फरमाता है। दुआ के असर में रब के पावर में कोई शक नहीं है। रब तबारक व तआला की पावर में कोई शक कैसे कर सकता है? शक ही नहीं है। वो पल भर में कुछ भी करने पर कादिर है, लेकिन वो अपने बंदे को उसकी हैसियत के मुताबिक ही अता फरमाता है। लिहाजा इस बात का ख्याल रखा जाए, इस अमल को अगर कोई करे तो अपनी हैसियत के मुताबिक ही नियत रखा जाए, अपनी ज़रूरत के मुताबिक की ही नियत रखा जाए। और जो लोग कहते हैं कि तुम करके खुद ही बन जाओ अमीर, खुद ही दौलत हासिल कर लो, मैंने उनको कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं इस वीडियो में एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के दिमाग में भी इस तरह की बातें गुदगुदी करती हैं, वो इस बात को सुन लें और समझ लें कि इंसान को रब तबारक व तआला उसकी हैसियत के मुताबिक देता है, उसकी ज़रूरत के मुताबिक देता है। न कि कोई अमीर है और अमीर होना चाहे तो रब तबारक व तआला उसको और अमीर बनाए। तो इंटेंशन पे जो है ये करता है, डिपेंड करता है। और रब तबारक व तआला के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब ने मुझे बहुत नवाजा है। अल्लाह का लाखों करोड़ों बेशुमार शुक्र है, उसने मुझे बहुत नवाजा है। और इसलिए आज मैं आपको ऐसे अमलियात बता पा रहा हूँ, इसलिए आज मैं आपके सामने हूँ और आप खुश नसीबी से नादी अली शरीफ के इस अमल को देख और सुन रहे हैं। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, इस पर बात करने का मेरा कोई विचार नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ी सी रोशनी इस पर डालना ज़रूरी समझा। अब मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो डॉक्टर साहब से, साइंस से, इस अमल से संबंधित है। एक बार का वाकया है कि एक डॉक्टर साहब टॉप क्लास के फिजिशियन, बहुत बड़े तजुर्बेकार डॉक्टर, ऐसे ही बातें चल रही थी तो उन्होंने कहा, यार ये क्या करते हो आप, मुझे तो इन सब में विश्वास नहीं है, ये वाकई में कुछ काम करता है, कुछ होता भी है नहीं। तो मैंने कहा, उनको जवाब नहीं दिया मैंने कहा चुप करो यार, फर्जी डिग्री लेके बैठे हो, पता नहीं कुछ आता जाता है, इंजेक्शन भरना जानते हो कि नहीं जानते हो। ये बात उनको बहुत बुरी लगी और रूठ गए, गुस्सा हो गए और उनकी आंखों में लाली आ गई। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब देखिए, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का था, तो मैंने आपको हर्ट कर दिया। मैंने हाथ नहीं लगाया आपको, मैंने उठा के कुछ फेंका नहीं, बस 2 जुमले कहे, यार फर्जी डिग्री लेके बैठे हो, पता नहीं कुछ आता है कि नहीं, सिरिंज भरना जानते हो, इंजेक्शन की नहीं। इस बात ने आपके दिमाग पे इतना असर किया, वो स्ट्रोक दिया इस बात ने कि आपको गुस्सा आ गया। तो इस बात में इतना असर है, तो बताओ, जब हम नादी अली शरीफ पढ़ते हैं, आयतें पढ़ते हैं, सूरतें पढ़ते हैं, रब का नाम लेते हैं और हमारा इंटेंशन जो होता है, हमारी नीयत जो होती है सही होती है, तो हम उसको अचीव करते हैं, वो अचीव होती है, पूरा होती है और ये इस तरह से असर होता है। उन्होंने कहा कि आपने ऐसा एग्जाम्पल दिया और ऐसा हाजिर जवाब दिया कि मुझे तुरंत समझ में आ गया कि हाँ, वाकई में ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यकीनन जब हम किसी इस्म, इबारत, आयत को, दुआ को, रब के नाम को पढ़ते हैं और हमारी नीयत सही होती है, शर्तों को पूरा करके परहेजगारी के साथ अगर हम पढ़ते हैं, तो उसमें हमको कामयाबी 110% मिलती है, क्योंकि हमारा रब तबारक व तआला सब कुछ देने पर कादिर है और वो पल भर में इंसान को कुछ भी दे सकता है। वो फर्श से अर्श पे पहुंचा सकता है, वो रोडपति को करोड़पति बना सकता है, वो छप्पर फाड़ के दे सकता है, वो रातों रात जो है करोड़पति अमीर बना सकता है। इंसान को रब तबारक व तआला बंदे की हैसियत के मुताबिक अता फरमाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ
کہ یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی. تو ابھی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، اپائے نسخے عمل نقص کے ساتھ. خوش رہیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. السلام علیکم، آداب.